ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਿਨਮਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਸਰੂਪ ਐਸੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤਪਸ਼। ਉਹ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਜ਼ ਤਪਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਪਸ਼। ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਠੰਡ। ਠੰਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਗੰਧ। तो ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਿਕ ਬਪਰੇ ਕੀ, ਸਰਪ ਅਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ। ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੇ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਛੱਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਲਾ ਦੇਗੀ। ਸਰੂਪ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰੂਪ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ, ਅਸਥੂਲ। ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਰਤ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਵਿਦਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲੋਂ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸਮਝ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦਾ ਬੋਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ, ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਅਸਥੂਲ ਜਗਤ ਦੇ ਜੋ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੇ ਮਦ ਸਭੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੀਰਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ।
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਰਦਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ, ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਇਹ ਅੱਖ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਤਲ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼। ਜਿਤਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਤਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਹੈ ਸਭ में ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ में ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਨੀਸ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਫਰਾਇਡ ਜੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਲੋਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਵਾਏ ਮੋਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲੇਕਿਆਂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਫੋਕਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾਈਏ, ਸਿੱਪੀਆਂ ਸੰਖ ਹੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ तो कह देता है बस सिपियां ही ने, संख ही ने, और कुछ भी नहीं। पर कौन दसे जरा होर गहरे च जा, मोती भी है गए ने। तू गहराई दे च जा, तेनू सुच्चे मोती भी मिल सकते हैं। ये ठीक है कि दर्शन ते इसे दे ही होणगे। जो थोड़ा बहुत नाम जपेगा ते अंतर्मुखी होवेगा, पहले पहले तो इन्हां दे ही दर्शन ने। इस वास्ते बहुती दुनिया घबराई भी है। कई लोग छोड़ भी देंदे ने, कहते ने अगे पिछे चंगे भले होंदे आ, मंत्र जपण लगदे आ, अंतर्मुखी होंदे आ, इसे दे ही दर्शन होंदे ने, होर ते कुछ नहीं। निराशा घेर दी है भी ते अंदर कुछ भी नहीं। पर यह सब कुछ ऊपर ऊपर है। जैसे सागर दे ऊपर ऊपर ही लहरां ने, हलचल है, गर्जन है, थल्ले गहराई दे ते शांति है। तो गहरे तल दे जाना पएगा। अज दा जिहड़ा मनीष है मनोविग्यानक, वो तो कहंदा इस तरह की कोई आत्मा साडे देखण दे च नहीं आई। पर जिस ढंग नाल उसने अंदर प्रवेश किया है, वो ढंग को बहुत गहराई दा नहीं है। गहरे तल दे च प्रवेश करन लईए परमात्मा दी याद, उसदे नाम दा रटन। और जैसे जैसे मनुख गहरा उतरदा है, सच्चाई प्रगट होंदी है। और इस तरह के मनुख कह देंदे ने
ਸਾਨੂੰ परमात्मा ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਕਿੱਥੇ ਗੂੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਇਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਕਿਉਂ? ਇਆਣੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੋਹ ਦਾ, ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਸਤੀ ਗਹਿਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਨ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਹਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਰਹੇ ਇਕੱਠੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਚ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੀ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਸੁਭਾਅ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਸੁਭਾਅ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਹੋਏ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ਸੀ। ਸੂਝ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰੂਪ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤਨਾ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਲੀਲਾ ਬਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵੀ ਜਾਏ, ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਚੈਨੀ ਉਸ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਧੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਚਿੰਤਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵੀ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਨੇੜਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮਝ ਆਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਬਣੇ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਏ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਹਰੀ ਹੈ ਐਸਾ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਭਗਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਗਹਿਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਕਰ, ਲੱਭ ਨਾ। ਅਗਰ ਸੁਭਾਅ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਜਨਮ ਖੋਜੇਗਾ, ਲੱਭਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ,
हुण परमात्मा मेरी तलाश करता है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। एक किस तरह हो गए, सुभाव दे तल ते एक हो गए। गुर कृपा जय नर को कीनी, ते ए जुगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। पत्थर दे च पत्थर लीन नहीं हो सकता, ठोस है। पानी दे च पानी लीन हो सकता है, रोशनी दे च रोशनी लीन हो सकती। इत्थे जितना चानना है होर चानना कीता जा सकता है, दुगना कीता जा सकता है, तिगुना कीता जा सकता है। रोशनी दे च रोशनी समा सकती है। पानी दे च पानी मेल खा जाएगा, पत्थर दे च पत्थर मेल नहीं खांदा। यह जी कह लई पत्थर ते पानी का भी मिलाप नहीं है, एक मिक नहीं आउणगे, कतई नहीं आउणगे। इस वास्ते ये तरल प्रमाण दिता है गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। मैं जिस दिन फ्राइड नूं पढ़ रहा सी ते लफ्ज़ बड़े मैनू चुभे भी भारत दे सारे संत गलत कहते ने। अंदर कोई नाम है, जोत है, राम है। कहता नहीं, सिवाय काम तो मेरे पल्ले होर कुछ भी नहीं पिया। कोई निरंकार नहीं है, सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है। कोई आनंद नहीं है, कोई खेड़ा नहीं है, कोई खुशी नहीं है, सिवाय तपश पछतावे ते क्रोध तो इलावा होर कुछ भी नहीं है। क्योंकि क्रोध ते पछतावा इकट्ठा ही रहता है। क्रोध करना फिर पछताना, फिर क्रोध करना फिर पछताना, फिर क्रोध करना फिर पछताना, कहता यही कुछ है, इस तो इलावा होर कुछ भी नहीं। हंकार वश होके कर्म करना फिर पछताना, फिर अहंकार वश होके कर्म करना फिर पछताना। वासना वश होके कर्म करना फिर पछताना, वासना वश होके कर्म करना फिर पछताना। फ्राइड कहता ये पछतावे ते पछतावे जरा कमजोर होए ते फिर किरत, इसे च जिंदगी लंघदी और यही मनुख नूं पागल कर देंदे ने। कर्म भी कीता फिर पछताए, कर्म भी कीता फिर पछताए। जो जो कर्म कियो लालच लग, तैं तैं आप बंधायो। तू ते रोज रोज बनीजदा जा रहे हैं। पातशाह दी बाणी, जो जो कर्म कियो लालच लग, तू ते जितने कर्म कीते सब लालच बस। इसनों इस तरह ले लो, जद मनुख दा लोभ ते मनुख दी कामना बाजार दे च नहीं पूरी होंदी, संसार दे च नहीं पूरी होंदी, उही कामनावां मनुख मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च लैके आंदा है। गुस्ताखी माफ, संसार दे च नहीं पूरियां कर सकिया, असफल हो गए। बाजार दे च नहीं पूरियां हो सकियां, कामयाबी नहीं मिली, नहीं मिली सफलता इसनों संसार दे जो चाहता सी नहीं होया, जो कामनावां सन नहीं पूरियां हुईयां। तो इहदे कोल एक आखिरी सहारा रह गया, रब दा, परमात्मा दा। तो चलो बाजार दे ते कामना नहीं पूरी हुई, चलिए गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद। मैं अर्ज करा किधरे कोई कद मनुख किसे मंदिर किसे मस्जिद दे किसे दरगाह दे किसे हज ते किसे तीरथ ते कामना तो रहत होके जांदा होवे, वरना मनुख नूं लोभ ही लै जांदा है। लोभ बाजार दे च लै जांदा है, लोभ ही गुरुद्वारे लिआंदा है। कामनावां ही जो है मनुख नूं गुरुद्वारे लिआंदियां ने। हाँ, दुनिया च नास्तिक भी होए ने बड़े बड़े प्रबल, और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, पता है धार्मिक ज्ञानी की कहते ने, मनुख अपनी वासनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है, और मनुख अपनी वासनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार करदा है। तुसीं आखोगे ते बहेली है, ये ते बुझारत होई, किस तरह समझीए? मनुख अपनी कामनावां नूं पूरा करन लई
परमात्मा नूं मनदा है। मनुख अपनी कामनावां दी पूर्णता दे लई परमात्मा नूं इनकार करदा है। ताकतवर मनुख, शक्तिशाली मनुख अपनी कामनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देगा। अगर परमात्मा नूं सामने रखे तो वह अपनियां कामनावां पूरियां नहीं कर सकता। 2 करोड़ बंदियां नूं मारिया है हिटलर ने, अगर रब नूं सामने रखदा तो मार सकदा सी। अपने तिन्ने ही भरा अपनी अखां दे सामने कतल कीते ने औरंगजेब ने। प्यो नूं जेल दे च पाया है, भैण दियां गुत्तां पकड़ के, केस पकड़ के, ध्रू के उसनूं जेल दे च सुटिया है। अगर खुदा नूं सामने रखदा तो कर सकदा सी, इते नहीं हो सकदा सी। 2 करोड़ बंदियां नूं मार के चाइना दे च क्रांति आई। 2 करोड़ बंदियां नूं मार के रशिया दे च क्रांति लियांदी गई सी। हुणे 84 दे च 5000 सिखां दीयां लाशां सड़कां ते बिठा दित्तियां। मासूम बच्चियां दे गलां च भी टायर जलदे। अगर परमात्मा नूं सामने रखिया जाए हो सकदा है? ये कोई कर सकदा है? एक शक्तिशाली मनुख, एक ताकतवर मनुख अपनी कामनावां दी पूर्ति लई जिस वक्त उसने करनी है परमात्मा नूं इनकार करदा है, नहीं मनदा। उन्होंने अगे रखिए उते प्रेम है, परमात्मा नूं अगे रखिए उते दया है, परमात्मा नूं अगे रखिए उते इंसाफ है, परमात्मा नूं अगे रखिए उते समदृष्ट है, उते करन नहीं देगा। एक पासे ताकतवर मनुख कोई विरला ही होवे, जनक जैसा जो धार्मिक होवे या महाराजा रणजीत सिंह जैसा, वरना नहीं आउंदा। मुश्किल है। सता मनुख नूं भ्रष्ट करके रख देंदी है। महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों नूं चिट्टे कपड़े पवाए सन, चिट्टियां टोपियां, लोकां नूं इंज लगदे सन जिवें आकाश तो उतर के देवते आए ने। देवते, बिल्कुल देवते लगदे सन। लोकी खुश होंदे सन उन्हां नूं वेख के। पर ताकत हथ दे च आ गई। जद कमजोर सन ते देवतियां दी तरह लगदे सन, बिल्कुल देवते। जद कमजोर सन देवते, पर ताकतवर हो गए तो चोर बन गए। जितना इन्हां ने लुटिया कोई डाकू नहीं लुट सकता, और सब कुछ सामने आया है। जद कमजोर सन ते बिल्कुल देवते लगदे सन, ताकतवर बिल्कुल दुराचारी ते भ्रष्ट हो गए, जालम हो गए। सियाणियां ने इस ढंग की खोज की थी। सरदार खुशवंत सिंह का एक लेख सी कि 200 साल दे दौरे हुकूमत दे अंग्रेजां ने इतनी गोली नहीं चलाई जितनी 40 साल दे गोली चल गई। 200 साल दे दौरे हुकूमत दे अंग्रेजां ने इतने फांसी ते नहीं चाड़े, नहीं बंदे मारे जिहड़े इन्होंने 40 साल च मार दिते। ताकत मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदी है, सता मनुख नूं भ्रष्ट कर देंदी है। शायद इसे वास्ते भाई गुरदास ने जनक नूं सब तो वड्डा भगत कह दिता है। क्यों? भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। ये वड्डा शब्द होर भगतां नाल नहीं जोड़िया भाई गुरदास ने। क्यों? इसने कोई भी जिहड़ी जिम्मेवारी है उस तो इनकार नहीं किया। राजनैतिक जिम्मेवारी निभाई, परिवारिक जिम्मेवारी निभाई, और इसी तरीके नाल सारियां जिम्मेवारियां निभांदियां आया उसने धार्मिक जिम्मेवारी निभाई। नहीं तो अक्सर ऐसे होए ने धार्मिक जिम्मेवारी निभाण की खातर लोगों ने कहा असी राजपाट एक पासे, ये जिम्मेवारी नहीं चुकते। भरतरी इनकारी हो गया, गोपी चंद इनकारी हो गया, महात्मा बुद्ध इनकारी हो गए। ये राजनैतिक जिम्मेवारी मैं नहीं चुकता, ये परिवारिक जिम्मेवारी भी मैं नहीं चुकता, ये तो बोझ है। महावीर भी कहने लगे राजनैतिक जिम्मेवारी मैं नहीं चुकता। राजकुमार सी, राजे का लड़का सी, और मैं परिवारिक जिम्मेवारी भी नहीं चुकता। मैं तो इस फस जावांगा, मैं तो सिर्फ धार्मिक जिम्मेवारी चुकनी है। 84 सिद्ध ने हिंदुस्तान का ते
ਕੁਝ ਇਸਲਾਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, और धार्मिक जिम्मेवारी तो ऐसी निभाई, भाई गुरदास जैसे आलम नूं कहना पे बहुत वड्डा भगत है। सब कुछ होंदियां उदास, गुरुमुख माया विच उदासी। सब कुछ होंदियां होया उदास, जबकि कुछ भी ना होवे ते लोकी उदास नहीं होंदे। आशा बनाई रखते ने, कामना बनाई रखते ने, चलो अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों। कामनावां दी पूर्ति होवेगी, कामनावां दी पूर्ति होवेगी। सिख जगत विच बहुत सारे राजे महाराजे होए ने, लेकिन जयंती ते बरसी सिर्फ महाराजा रणजीत सिंह दी मनाई जाती, होर किसी दी भी नहीं। बथेरे होए ने, महाराजा जींद होया, महाराजा कपूरथला होया, महाराजा पटियाला होया, नाभा होया, पता नहीं कितने महाराजे होए ने, कोई थोड़े ने। लेकिन सिख जगत अपने धार्मिक अस्थानां विच गुरुद्वारियां बरसी मनांदा है महाराजा रणजीत सिंह दी, जयंती मनांदा है महाराजा रणजीत सिंह दी। क्यों? महाराजा होण करके नहीं, इसने धार्मिक जिम्मेवारी निभाई महाराजा होंदे होया, इसने धार्मिक जिम्मेवारी निभाई परिवारक होंदे होया, समाजिक होंदे होया। इन्हें परिवार त्यागया नहीं, राजनीति छोड़ी नहीं। इस वास्ते महान है। घर दे च धन वधदा गया, इस दे हिरदे दे च धर्म वधदा गया। बाहरों राज पाठ वधदा गया, अंदर धार्मिक रस वधदा गया। बाहरों ताकत वधदी गई, अंदरों निर्माणता वधदी गई। एक निक्का जिहा उदाहरण, हैदराबाद काफी लंबे समय तो मुस्लिम जागीर रही है नवाब दी, ते उन्हां दी स्टेट दे कुछ गदर होण लगा, लोकी बगावत करन लगे, ते कुछ डकैत भी ऐसे सन आले दुआले रोज ही डाके मारने, ते ये हैदराबाद दे नवाब तो काबू नहीं हो रहा सी। उन्हें अपना अर्दली भेजिया महाराजा रणजीत सिंह को भी मेरी मदद करो। कुछ ऐसे डकैत ते चोर ते जालम मनुख रोज उपद्र कर रहे ने, ते साडे काबू तो परे हो गई ये गल। तुसी घट तो घट 500 बंदे सानू इस तरह दे जरूर दिओ, जिस नाल मैं राजपाट चला सकां। आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, महाराजा रणजीत सिंह ने 1000 भेजे, जिन्होंने अज असी दक्कनी सिंह कहते हैं। ये दक्कनी नहीं ने, पंजाब तो ही महाराजा रणजीत सिंह ने भेजे ने। हैदराबाद दे च, करनाटका दे च, महाराष्ट्र दे च जो लोग मौजूद ने, ये पंजाब चो ही गए सन। जब स्टेट दी शांति हो गई और नवाब ने सुकून महसूस किया, उसने नजराने वजों एक बड़ी कीमती चाननी जो दरबारां दे अक्सर राजे महाराजियां दे सिर दे उत्ते बन्नी जाती, जिन्हों चंदोआ कहंदे ने, भेजी। एक दिन दीवाने खास दे कोई खास तकरीब सी, ये चाननी एहलकारां ने बन दी तोशेखाने चो लिया के। जैसे महाराजा साहब आए, तखत ते नहीं बैठे, दूरों ही खड़े रहे, देखते ने चाननी नूं। तो पुछया एहलकारां नूं, ये चाननी कित्थों आई, कद बनाई गई? चेते च नहीं रही। हजारां चाननियां तोशेखाने च पईयां होणियां ने। एहलकार कहण लगे, महाराजा साहब ये निजाम हैदराबाद ने आपनों नजराने वजों भेंट की सी, तोशेखाने च पई सी।
ਅੱਜ ਖਾਸ ਤਕਰੀਬ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਤਾਰੋ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਬੜੀ ਛੜ ਗਈ ਵੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਤਾਰੋ। ਕੁਛ ਐਲਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਇਹ ਚਾਨਣੀ ਆਪ ਦੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਚ ਨੀਲਮ, ਹੀਰੇ, ਪੰਨੇ ਸਭ ਜੜਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ 84 ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਲ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਚਾਨਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਸਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਕਤ ਚਾਨਣੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਥੇਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਕ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਵਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ। तो कुछ ऐसे ने जो कहने ने ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਭਰਤਰੀ ਨੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋੜੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਹਾਈ। ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ, तो तेरे सहायक बने मां पिता। तो बच्चे लिए उपदेश है, तू सब तो पहले ईश्वर नूं अपने मां बाप विच देख, सब तो नेड़े ने, ये सब तो नेड़े ने। ते जिहड़े सब तो नेड़े ने उन्हां च नहीं दिखाई देंदा, ते बाकियां च की खाक दिखाई देगा? किस तरह दिखाई देगा? मां बाप तेरे बुढ़े हो गए ने, तू जवान हो गया, हुण तू इस तरह सेवा कर जिवें उन्हां ने तेरी सेवा कीती सी। मात पिता सुत बंधप भाई। मैं जद सुनदा, खास करके यूरोप के देशों ते इधर, कि बुढ़े मां बाप नूं ते बच्चे मिलन भी नहीं आउंदे, संबंध ही नहीं रहे कोई। धार्मिक जिम्मेवारी ते निभानी नहीं सी, परिवारक जिम्मेवारी भी नहीं निभाई, ये भी मैं अर्ज कर दिया। इन्हां सारे संबंधां दा गुरबाणी जिक्र कर दिए। इन्हां संबंधां विच तो पहले परमात्मा दे, भरा दे, भैन दे, पत्नी दे, पति दे, बच्चियां दे, मां बाप दे, पहले तो गल परिवार तो शुरू होवेगी। ये सब संबंध उसने बनाए ने। तियां पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए। संबंध ने इन्हां दे झलक देख। अगर बच्चियां दी सेवा करें
तो इंज जान के परमात्मा जान के, मां बाप की सेवा करें तो परमात्मा जान के। ये तो सब तो नेड़े ने, अजे भी गुरुद्वारा दूर है, तेरे घर तो दूर है। घर दे जिहड़े नेड़े ने, बहुत नेड़े ने, पहले तो इन्हां च देख, गुरु की शिक्षा दीक्षा तो यही है। निभा अपनी परिवारिक जिम्मेवारी। भाई साहब भाई गुरदास जी तो इत्थे कहते ने, मां प्यो पर हर सुने वेद, भेद न जाने कथा कहानी। मां दा दिल तोड़ के ते पिता दी निरादरी करके अगर कोई कथा सुनन जाए तो रब दा भेद नहीं समझ सकेगा। भाई साहब भाई गुरदास जी नहीं समझ सकेगा। मां प्यो पर हर करे तीरथ, 68 तीरथ घुमण वाणी। प्यो दियां लोड़ां पूरियां नहीं कीतियां, बुढ़ा है, मां दा इसने दिल तोड़िया, बिरध है विचारी, चला गया तीर्थां दे इशनान ते। भाई साहब कहते ने घूमना फिरना हो गया, सैर सपाटा है, ये तीर्थ नहीं, तो कतई नहीं, ये कोई तीर्थ नहीं। मां प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान पराणी। न प्यो दियां लोड़ां पूरियां कीतियां, ना मां दियां लोड़ां पूरियां कीतियां, विचारियां बिरध। ते बड़ा दानी बनया फिरदा है। धार्मिक मंदिरां दे च भाई साहब कहंदे ने परले दर्जे दा बेईमान है, दानी नहीं है, बेईमान अज्ञान पराणी। भाई साहब भाई गुरदास जी भी तेनों किसने कह दिता कि बाहर परमात्मा है, घर दे च नहीं। सब तो नेड़े ते ने, पहले इन्हां च देख, इत्थों देख, यात्रा इत्थों शुरू कर। ये सारी जिम्मेवारी बड़ी खुश असलूबी नाल जनक ने निभाई। परिवारिक जिम्मेवारी, राजनैतिक जिम्मेवारी। राजनैतिक जिम्मेवारी महात्मा गांधी दे चेले नहीं निभा सके, ये भी मैं अर्ज कर दिया, और शायद इस वास्ते भी नहीं निभा सके। सता लई संघर्ष करते रहे महात्मा गांधी, ते जब देश आजाद होया ते सता सौंप दी चोरां दे हवाले च, खुद एक पासे हो गए। तो सता संत कोल चाहिदी सी, महात्मा गांधी दा, इहनूं महात्मा लोकी कहंदे ने, ते सता ते महात्मा दे हत्थे चाहिदी सी, संत दे हत्थे चाहिदी सी, सता चोरां दे हत्थे चाहिदी, डकैतां दे हत्थे चाहिदी। जिहड़े कल तक देवते लगदे सन, डाकू दिसन लग पे। कल तक देवते दिसदे सन, जालम दिसन लग पे। कल तक फरिश्ते दिखाई देंदे सन, चोर दिखाई देन लग पे। सता दे मिलदियां मनुख भ्रष्ट हो जाता है। सारा वो रंग रूप बिगड़ गया जो लीपा पोती कीती हुई सी। ज्यों सता दी बारिश हुई, सब धुल गया, सब सराफत धुल गई, सब ईमानदारी जो है धुल गई। जिम्मेवारी राजनैतिक नहीं निभा सके। कहते ने कोई 1000 साल देश गुलाम रहा है, इस देश का भाईचारा मुगल तोड़न दे सफल ना होए। अफगानी भी नहीं तोड़ सके, ईरानी भी नहीं तोड़ सके, अंग्रेज भी उस देश का भाईचारा तोड़न दे सफल ना होए। लेकिन इन्हां 40-50 सालों च इन्होंने सारा भाईचारा भी तोड़ के रख दिता है। खेरू खेरू हो गए सब, नाकाम, बिल्कुल नाकाम। खैर ये तो मैं गल सामने आ गई, तो मेरी आदत भी है कदी कदी कह देना, भावें इस आदत करके मैं बहुत औखा भी है, पर आ गई गल जब मेरे कंठ तक वापस करनी जरा औखी हो जाती। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा। भगत वडा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। कहते ने मुस्लिम बादशाहां दे विच इस तरह का बहादुर शाह होया है। यह गल वखरी है कि जनक की तरह यह जानिया नहीं गया। उदा कारण जनक जवानी दे विच ही ब्रह्मज्ञानी हो गया सी, ये बुढ़ेपे च होया है, बिरध अवस्था।
ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨੀਆਂ ਚ ਲੰਘੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੰਗੂਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਿਓ, ਮੁਸੱਲਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਸਬੀਹ ਦਿਓ, ਕੂਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਨਾ ਇਬਾਦਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਬਾਬਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਾ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਤਾ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਨ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਨ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨੇ ਅਯਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਾਠ ਨੇ ਅਯਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਨੇ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਇਡ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਵਾਏ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕਾਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੋ ਜੋ ਹੈ क्रोध तो और कुछ भी नहीं मिलता। पता है बाबर की कहता है, रोजो नो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा नेस्त। एक कहता है उदास होने की, निराश होने की लोड़ नहीं है। दुनिया बड़ी रंगीन है, बड़ा रंग है, बड़ा रूप है, बड़ा रस है, उदास होने की लोड़ है। गुरुमुख माया विच उदासी, उदास है जनक, बिल्कुल उदास है संसार तो ये कहता उदास होने की लोड़ है। जद उदासी घेरे, रस बदल लो, रूप बदल लो, रंग बदल लो, सब कुछ है जगत विच, कोई घट कम है। बाबर दी सोचनी, रोजो नो हर नवे दिन नवा रंग, नवा रूप, नवा रस। रोजोनो बहारों में व दिल रुबा खुशस्त, बाबर ब ऐश कोश के आलम दोबारा ने। ऐश कर, आनंद ले, उदास होने की लोड़ है। इन्नी रंगीन दुनिया ते उदास हो जाइए, इतना रस दुनिया दे ते उदास हो जाइए। ये बाबर दी सोचनी ते मैं हुण बहादुर शाह दी सोचनी थोड़े सामने रखा। जमीन आसमान दा फर्क। ये भी शायर सी बहादुर शाह। एक कहता है, लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आल में ना पाएदार में। मेरा दिल नहीं लगता, कुछ भी नहीं है, जगत कुछ भी नहीं, बच्चियां दे खिडौने तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। उदास, सिंघासन ते बैठा होया उदास। पता है तवारीखदान की लिखते ने, जिन्होंने हिंदुस्तान की तारीख लिखी है, वो कहते हैं इस दी हार दा एक यह भी कारण सी कि राजपाट तो उदास सी, उदास सी, वरना इतनी जल्दी हार नहीं होनी सी। और जिस बेदर्दी नाल अंग्रेजा ने इस दे परिवार नूं मारिया, इहदे बच्चियां नूं मारिया, इहदे बाकी साथियां नूं मारिया, इस ढंग नाल नहीं हो सकता सी, पर यह उदास सी। बहादुर शाह जफर अगे कहता है, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, बड़ी लंबी उम्र में खुदा तो लेके आया। किन्ने? 4 दिन। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई 2 इंतजार में। अद्धी जिंदगी लंघ गई कामनावां करदियां, अद्धी जिंदगी लंघ गई उड़ीक करदियां, कामना अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी, कोई पूरी नहीं हुई, कोई पूरी नहीं हुई। मनुख दे मन की बड़ी
गजब की तर्जमानी कर गए। अद्धी शक्ति, अद्धा समा, अद्धी जिंदगी लंघ गई कामनावां करदियां। अद्धी जिंदगी, अद्धा समा बर्बाद होया उड़ीक करदियां। इच्छा अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। कामना अज पूरी होवेगी, कल पूरी होवेगी। दो आरज़ू में कट गई, दो इंतजार में। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। ये जो अरमान ने, ये जो हसरत ने, ये जो कामनावां ने, जो वासनावां ने, बहादुर शाह जफर कहंदा इन्हां नूं कोई आखो जाओ मेरे हिरदे चों, मैं थानू छोड़िया छोड़ो मैनू। भरतरी भी तंग आके कहंदा मौत अज मात रमा अब तू भज आन किसे। ऐ वासना मैं तेनू छोड़िया छड़ मैनू तू। ऐ कामना मैं तेनू छोड़िया छोड़ मैनू तू। ऐ हंकार मैं ते सिंघासन छड़ आया। आखिर सिंघासन हंकार वास्ते चाहिए, मैं ते छड़ आया पर कम वक्त तू मैनू नहीं छड़दा, मेरे पीछे ही है, दुखी है। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें। इतनी जगह कहां है दिले दागदार में। इन्हां संसारियां वासनावां लई हुण मेरे दिल दे च थां नहीं है। जाओ निकलो, रुखसत होवो। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। कहंदे ने आखिरी दमां ते सी ते अंग्रेज कहण लगे कोई इच्छा। कहंदा हां, जिस मिट्टी च मैं जमिया, जिस मिट्टी च मैं पलिया, मेरी कबर उत्थे ही बना दो दिल्ली दे विच। मिट्टी खिंचदी है, यह भी मैं अर्ज कर दिया। नवीं जनरेशन थोड़े इस पासे दी जंपल वो गल वखरी है। बजुर्गों के अंदर ते मिट्टी दी खिच आउंदी है। मैनू गल भुलदी नहीं, सन 66-67 दी ननकाना साहब एक माता कहने लगी ज्ञानी जी कोई वसीला ऐसा बन जाए सरगोदे हो आईए। तो मैं कहा आप तो ननकाना साहब की यात्रा ते आया ते बैठे ननकाना साहब हाँ ते तेनों सरगोदा याद आ रहे। कहते की करा, घर ही याद आउंदा है, वो गलियां याद आउंदियां जिथे मैं खेडी याद आउंदियां। कोई सरगोदे जाण दा वसीला बन जाए। हिंदुस्तान पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं सन, 65 की जंग हो हटी सी ते अजे जख्म बड़े हरे सन। सिर्फ ननकाना साहब की इजाजत सी, लाहौर की इजाजत भी नहीं सी भी ननकाने साहब तो ही वापस जाओ। ते वो बैठी ननकाना साहब ते याद करी जाए सरगोदे नो। मैं क्या मिट्टी दी खिच है और कुछ नहीं, मिट्टी खिंचती है, मिट्टी दी पकड़ है। तो ये पकड़ बहादुर शाह जफर दे च भी ये अंग्रेज़ां नूं कहंदा मेरी कबर दिल्ली दे च बना। अंग्रेज नहीं मने। कई दफा ऐसा होंदिया है, कईयां दी जिंदगी नहीं बोलती, कईयां दी मौत भी बोलन लग पैंदी है। चांदनी चौंक दे च लंघदे आया हर बशर दा सिर झुक जांदा है गुरुद्वारा सीसगंज दे अगों। कटे होया सीस भी झुकण लोकां नूं झुकाण ते मजबूर है। डुले होया खून और उत्थे दी शहादत मौत पता नहीं कितनियां जिंदगियां नूं रोज झुका रही है, सजदे करन ते मजबूर कर रही है। कईयां दी जिंदगी भी कुछ नहीं बोलती, कईयां दी मौत भी बहुत बोलती है। बड़ा संदेशा देंदी है, बड़ा उपदेश देंदी है। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, अंग्रेज नहीं मने। कहने लगे नहीं फिर तेरी कबर बोलेगी, नहीं असी उथे नहीं ले जाना। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। उस महल्ले विच, उस मिट्टी च मेरी कबर वास्ते भी थां नहीं। की ये जगत कुछ भी नहीं है, ये संसार की है। मेरी जिंदगी लई गल एक पासे, मेरी मौत लई भी जिस जमीन ते थां कोई नहीं। इस दुनिया नूं मैं अहमियत दें ते की दें, कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर अर्ज करा, मनुख दियां कामनावां वासनावां
जद बाजार दे संसार दे नहीं पूरियां आउंदियां ले आउंदा है अक्सर गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद दे और जद सारे लोग कामनावां नूं ले आवन तो गुरुद्वारा गुस्ताखी माफ बाजार बन जाता है, मंदिर बाजार बन जाता है, मस्जिद हज ते गए हुए लोग बाजार बना के रह जाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता क्योंकि कामनावां इत्थे ते प्रार्थना लो लैके आना सी, धनवाद नूं लैके आना सी, शुकराने नूं लैके आना सी। लख लख गुरु तेरा शुक्र तो मनुखा जन्म दिता, लख लख तेरा शुक्र तेरे कोलों रब दा कलाम सुनन नूं मिलिया, लख लख तेरा धनवाद तेरे कोल बैठण दा मौका मिलिया, लख लख तेरा धनवाद तेरी गल सुनन दा मौका मिलिया। इस तरह धनवाद नाल कोई एक दिन भी आ जाए तो मैं अर्ज करदा वो करोड़ां दिन जो मनुख वासना नाल आया वो सारे कुर्बान किए जा सकते हैं, वो एक दिन दे च भी गल बन सकती है। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, एक कमजोर मनुख अपनी वासनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है, एक ताकतवर मनुख शक्तिशाली मनुख अपनी वासनावां दी पूर्ति लई परमात्मा नूं इनकार कर देंदा है, नहीं मनदे। क्यों? परमात्मा ते दया है, परमात्मा ते निर्वैर है, परमात्मा ते निर्भय है, उते समदृष्ट है, उते प्रेम है। उन्होंने सामने रखिए ते 2 करोड़ बंदे कतल किए जा सकते हैं, किसी नाल छल ते कपट किया जा सकता है। तो एक शक्तिशाली मनुख, एक ताकतवर मनुख ईश्वर नूं एक पासे करता है, कहते कम से कम हे परमात्मा तू तो एक पासे हो, तां ही वो कर सकता, वरना नहीं कर सकता। यह गल वखरी है कि परमात्मा एक पासे नहीं होएगा, वो तो व्यापक है, पर कम से कम उसने अपनी चेतना चों, अपनी बुद्ध चों, अपनी सोचनी तो, अपने व्यवहार तो एक पासे कर देता है, अपने स्वभाव तो एक पासे कर देता है। एक ताकतवर मनुख अपनी वासना की पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है। एक ताकतवर मनुख, एक शक्तिशाली बंदा जो अपनियां कामनावां पूरियां करना चाहता है, ईश्वर खुदा बाधा है, एक पासे करता है। पर एक कमजोर मनुख अपनी वासनावां की पूर्ति लई परमात्मा नूं मनदा है, तो परमात्मा नूं इनकार करना, परमात्मा नूं मनना, ये परमात्मा की अहमियत करके नहीं, मनुख दी अपनियां कामनावां करके, और कुछ भी नहीं। और सब तो प्रबल कामना है मनुख दे अंदर जीवन दी। किन्ना क जीवना चाहता है? 100 साल है तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इस दे नाल जीवन की लालसा नहीं पूरी होती। महाराज कहते ने जे जुग चारे आर जा, एक एक युग की लखां साल की उम्र, तो घट 10 साल की, 10 लाख साल की उम्र होवे। महाराज कहते नहीं, इस नाल भी तृप्ति नहीं आती, जीवन की लालसा इत्थे भी खत्म नहीं होती। काश अगर कोई 10 लाख साल भी जी ले तो वासना इत्थे नहीं खत्म होती, नहीं तो सतगुरु नूं यह ना कहना पैना और 10 होनी होए, और 10 गुणा हो जाए, तो फिर तो 1 करोड़ साल, तो करोड़ साल जी के भी क्या जीवन की लालसा पूरी होगी? कतई नहीं। मनुख जीवना ही चाहता है, जीवना ही चाहता है। दुखी है, संताप दे च है, रोगी है, शरीर की सारी शक्ति छीण हो गई है, जीवना ही चाहता है। जीवन की लालसा मरदे दम तक पीछा करती है। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। तो मर के भी किथे मरे हैं, कबर दे उत्ते भी तेरा नाम लिखिया पिया, तेरी वल्दियत लिखी पई है, तेरा गुण लिखिया पिया, तेरा सुभाव लिखिया पिया, तेरी उपमा लिखी पई है। तो मर के भी थोड़ी मरे हैं, जीवन की लालसा तो मौजूद है। तो खैर मुख्तसर में इसका साहिब कहते ने प्रबल लालसा है जीवन की, और जीवन की प्रबल लालसा है तो बड़ा प्रबल भय होगा मौत का, क्योंकि जीवन की लालसा है। फिर जीवन वास्ते सब कुछ चाहिए, फिर हंकार चाहिए, सिर्फ मैं लंबा जीवा ही ना, कम से कम सारा संसार मैनू जाने। हंकार अपने आप को प्रगट करना चाहता है,
ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਹਿਰਦੇ ਰਾਖਿਆ, ਰਤਨ ਨਾ ਛਪੇ ਛਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਟਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਹੰਕਾਰੀ ਸਤਾਦਾਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਏ। ਰੱਬ ਮਿਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਟੇ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਬ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਜਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ परमात्मा ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਰੱਬ ਹੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਈਸ਼ਵਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ, ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧੇ ਤਾਂ ਲੋਭ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਇਆ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਰੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਧ ਗਹਿਰਾ, तो भय केवल मौत दा है। इतनी मैं अर्ज करा, क्योंकि जीवन की लालसा बड़ी प्रबल है। तो जीवन अगर इतना विस्तृत हो जाए, इतना वड्डा हो जाए, तो फिर लोभ भी चाहिए, हंकार भी चाहिए, बड़ी प्रबल वासना भी चाहिए। तो भय मौत दा है। महाराज कहते ने ईश्वर निर्भय निरभव, ਉਹਦੇ 'ਚ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਭੈਭੀਤ, ਤੋ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਜਾਏ तो फिर परमात्मा परमात्मा नहीं। अगर मनुख निर्भव हो जाए तो मनुख परमात्मा। निर्भव जपे सगल भव मिटे, निर्भव दा जाप सारे भय मिटा देंदा है। मनुख ईश्वर दा रूप हो जाता है। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। इस तरह के मनुख के अंदर जीवन की लालसा नहीं रहिंदी। इस तरह के मनुख के अंदर मरण का भय भी नहीं रहिंदा। मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रतिपालई लेखे सास गिरास। वो जो परमात्मा है उसके सुभाव दे च भय नहीं है, निर्भव। फिर उसके सुभाव दे च वैर भी नहीं है, निर्वैर। वैर एक ऐसी आदत है, एक ऐसा रोग है। अगर वैर हिरदे च है तो जिस नाल वैर है मनुख दा मन हर वक्त उसदे लिए बुरा मंगेगा। पहले बुरा मंगेगा, अगर मौका लग जाए तो बुरा करेगा, क्योंकि वैर है। इस वैर नूं पराई तात करके आख्या, पराया साड़ा, पराई जलन, हर वक्त दूजे दा बुरा मनना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिस दा कदे न होवे भला। महात्मा बुद्ध ते एक प्रश्न होया सी और मैनू बहुत चंगा लग्या जिस दिन मैं पढ़िया सी। आनंद ने प्रश्न कीता सी, उन्हां दा चचेरा भरा सी, सब तो ज्यादा सवाल यही करदा सी। एक ते सियाणा बड़ा सी ते दूसरा जो बाकी बौद्ध भिक्षुओं को आनंद मिल गया सी,
इस कोल नहीं सी, भावें ना इसका आनंद सी, पर इसदे कोल आनंद नहीं सी। समझ बड़ी सी, इसू तार्किक बड़ा सी, बहुती तर्क बहुती सियाणप इसनू भोला नहीं होण देंदी सी, हर गल दे ते विश्वास नहीं टिकण देंदी सी। तो प्रश्न कीता महात्मा बुद्ध ते, दुनिया दे सब तो वड्डा आश्चर्य की है, हैरान कुन कर देण वाला की है, ऐसा की है? और एक छोटे रूप में दस दो, ऐसा की है कि मैं हैरान हो जावां, आश्चर्य हो जावां, ऐसा आश्चर्य की है। तो आनंद नूं समझांदे होया महात्मा बुद्ध कहंदे ने, आनंद आश्चर्य इक्को ही है मेरी दृष्टि च। मनुख कर रहा है अपने नाल बुरा, लेकिन सोच रहा है मैं दूजे दा कर रहा, बस यही आश्चर्य है, और कुछ भी आश्चर्य नहीं है। यही हैरान कुन अवस्था है। मनुख कर रहा है बुरा, ये समझ के मैं दूजे दा नाल कर रहा, तो महात्मा बुद्ध कहते ने कमाल दी गल अपने नाल कर रहा है। इस सारी कीती हुई बुराई पलट के वापस आ जाती है, उसदे कोल आवेगी। तेनू समझ कोई नहीं। इस तो वड्डा आश्चर्य मनुख दुखी है, इस वास्ते जगत नूं दुख दिते ने पलट के वापस आ गए ने। दिता लईए अपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। जो कुछ तेरे कोल है पलट के वापस आया है। धरती ओही कुछ वापस देंदी है जो बीज बोए ने। मेरे दुखां लई मैं जिम्मेवार, कोई जिम्मेवार नहीं, ना समाज, ना हुकूमत, ना मां बाप, कोई भी नहीं। दुख दिता होया पलट के वापस आ जाता है। दिता लईए अपना, अण दिते किछ हथ ना आवे। और महात्मा बुद्ध ने पता है फिर आनंद नूं की किया, किसी नूं खुशी दिते बिना भी खुशी नहीं मिलती। ऐ आनंद, ये दूजा रहस्य भी मेरे को सुन ले। किसी नूं मुस्कुराहट दिते बिना भी मुस्कुराहट नहीं मिलती। जे कंडे बोए सन ते कंडे मिले ने, पर बिना बोए ते फुल भी नहीं मिलते। खुशियां दिते बिना किसनों खुशियां मिलियां ने, दुख दिते बिना किसनों दुख मिले ने। आनंद यही आश्चर्य है, यही जगत दे आश्चर्य है। पर वैर नाल भरिया होया मनुख हर वक्त दूजे दा बुरा सोचदा है, और मौका लग जाए तो बुरा करदा है। ते जिहड़ा ये सोची जाना है ना बुरा होवे, क्योंकि पराई तात रखण वाला इस तरह सोचदा है, और कई दफा तो इस तरह का भी सोचदा है, भावें मेरी इज्जत बने भावें ना बने, पर दूसरे की बेइज्जती होनी चाहिए। मेरे सिर ते कोई पग बने भावें ना बने, पर दूजे की लैनी चाहिए। मेरा घर बने भावें ना बने, पर दूजे का उजड़ना ही चाहिए। अपना इस तरह सोच के भी दूसरे का बिगाड़ना, वैर नाल भरिया होया हिरदा। जिस दे अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला। पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। ईरानी सूफी संत हाफिज बहुत कीमती गल करदा है, मैं लमकावा ना समाउण लगा। वो कहंदा है, दरख्ते दोस्ती बा निशां के काम में दिल बबार आरद। दोस्ती दा बूटा ला, जे तू दिल दे सुकून चाहना है, ते जे तू खुदा दा मिलाप चाहना है, खुदा दा मिलाप चाहना है, तो तेरी दुनिया च उतना खुदा प्रगट होवेगा जितने नाल तेरी जो है दोस्ती है, और तेरी दुनिया तो उतना ही खुदा दूर होवेगा जितनी तेरी दुश्मनी है। दुश्मनी व्यापक भी आउंदी है, किसी मुल्क की बहुत सारे मुल्कां नाल दुश्मनी है,
ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦਰਖਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਾਨਿਸ਼ਾਂ ਕੇ ਕੰਮ ਹੈ ਦਿਲ ਬਬਾਰ ਆਰ। ਦਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸਭ ਸੱਜਣਾ, ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਸਭ ਬਾਦ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸੱਜਣ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। सहारा न देती अगर मौजे तूफान, डुबो ही दिया था हमें ना खुदा ने। ये शायर कहता है मैनू ते लहरां ने किनारे ते ला दिता, नहीं ते मला ने ते मैनू डोब ही देना सी। हद हो गई। लहरां ने किनारे ला दिता, ला देंदियां ने अगर सागर नाल प्यार है। लहरां भी किनारे ला देंदियां ने, और सागर नाल प्यार नहीं तो कई दफा एक लहर भी डोब के रख देंदी है। ये भी मैरिज कर देता। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब वाद। सारे ही सज्जन हो गए। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं एक दो दी गल नहीं, सबको मीत हम आपन की ना। ब्रह्मंड दे जो कुछ भी है सब मेरे मित्र। हम सबना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राजन। सारे मित्र तो मनुख मित्रां दा भला मंगदा है, तो सरबत दा भला। अगर कोई दुश्मन है तो फिर मनुख उसका बुरा मंगदा ही है। तो बुरा मंगिया होया बुराई वापस आ जाती है, बुरा दिता होया कीता होया पलट के वापस आ जाता है। ईश्वर दे च वैर नहीं है, और जो ईश्वर का चिंतन करता है वह भी निर्वैर हो जाता है। हर एक का भला मंगण लग पैंदा है, किसी का भी जो है बुरा नहीं मंगता। परमात्मा दे सुभाव दे च भय नहीं है, परमात्मा दे सुभाव दे च वैर नहीं है, और परमात्मा दे सुभाव दे च समा नहीं है, वक्त नहीं है, काल नहीं है। इसकी व्याख्या मैं कल आप जी के सामने करांगा। समा हो गया, ना ज्यादा थानू बिठाइए। धन गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश करन, सानू परमात्मा दे सुभाव की समझ पै ते फिर परमात्मा का सुभाव अपना सकीए, ऐसी तौफीक मिले, ऐसी समर्था मिले। जिस दिन बंदे को परमात्मा का सुभाव आंदा है, लोकी कह देंदे ने ते रब जैसा है, ये ते परमात्मा जैसा है, ये ते ईश्वर की झलक मिलती है। और जब परमात्मा तो ईश्वर तो बिल्कुल मुख्तलिफ मुखालिफ सुभाव होवे, लोकी ते कहंदे ने ते निरा ही शैतान है, निरा ही दुष्ट है, ते निरा ही पशु वर्ग है। और एक हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है, परमात्मा दे च भय नहीं। तो भय तो अगर कोई रहत होना चाहता है तो निर्भव जपे सगल भव मिटे। रब नाल जुड़ी हुई आत्मा च कोई भय नहीं आता। और हिरदे दे च वैर है तो इस मनुख का कतई कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि वैर नाल भरिया होया हिरदा बुरा मंगदा रहिंदा है, मंगदा रहिंदा है बुरा, ते दूजे लई बुरा मंगिया होया अपना बुरा हो जाता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं बस सब तो वड्डा आश्चर्य यही है, मनुख सोच रहा है मैं दूजे नाल बुरा कर रहा, पर कितना वड्डा आश्चर्य है अपने नाल कर रहा है, अपने नाल कर रहा है। ये तो पलट के वापस आएगा। दिन 2 दिन लगणगे, वक्त लगेगा, वापस आ जाएगा। ये इवें मुगालता जिहड़े कई कहंदे ने फलाना बंदा है ते बड़ा दुष्ट पर मौजां पिया करदा है ते बड़ा बेईमान मौजां पिया करदा है। ते जिसनों बेईमानी च मौजां दिखाई दे रही ने, जिन्हों दुष्टपने च मौजां दिखाई दे रही हैं, इहदा सज्जन होना सिवाय धोखा है और कुछ भी नहीं। ये भी महर्ज करते हैं, क्योंकि इन्हों मौजां ते दुष्टपने ही दिखाई देंदियां पईयां ने। जद कदी मैनू कोई इस तरह का कहता है गैनी जी पापी वो गुनाहगार वो दुष्ट मौजां पे मारते ने, तो मैं कि तेनों गुरबाणी च कख भी नहीं मिल सकता, क्योंकि तेनों मौजां ते दुष्टपना ही दिखाई देंदियां ने। तेनों कौन दसे दुष्टपना अपने आप दे च इतना तनाव है, इतना बोझ है, जितनी मानसिक पीड़ा तो दुष्ट लंघदे ने
ਤੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਤਨੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਇਤਨਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, यही सब तो वड्डा आश्चर्य है। एक मुल्क दूजे मुल्क नाल बुरा करदा है, पर कौन दसे ये ते बुराई पलट के वापस आएगी। एक कौम दूजी कौम नाल बुरा कर दी है तो दूजी कौम जान के बुरा कर दी है, कौन दसे पलट के वापस आएगी। एक परिवार दूजे परिवार नाल बुरा करदा है, पर कौन दसे ये दूजे नाल नहीं कर रहा, ये ते पलट के वापस आएगा। ये ते दिता लईए अपना अण दिते किच हथ ना आवे। बहुत लंबा चौड़ा खुलासा है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी च, पर मैं इत्थे ही समाप्त करा। मूल मंत्र दे होर कुछ काफी वाक रहिंदे ने ते कल परसों ते इतवार दोपहर की हाजरी 3 हाजरियां आप दे चरनां च भरनियां ने। कोशिश करांगा इन्हां दे मूल मंत्र नूं मैं समाप्त कर सकां। मैं फिर अर्ज करा, मूल मंत्र दी विचार समाप्त नहीं होवेगी। इंज कह दो, मेरे जैसे ज्ञानी हजारां जन्म लैण ते होर हजारां कथा करन, मूल मंत्र अपनी थां ते है। अगम्मी विचार है, अगम्मी गल है। समय की समाप्ति हो जाती है, बंदे की अपनी सोचण शक्ति की समाप्ति हो जाती है, बंदे की अपनी कथन शक्ति की समाप्ति हो जाती है। तो कहना पैंदा कथा की समाप्ति, कथा जब रब मौजूद है तो उसकी कथा किथे मिटेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। हाँ, कथाकार मिट सकते हैं, कहण वाले मिट सकते हैं, लेकिन उसका कहना तो मौजूद रहेगा, वो तो जगत विच रहेगा। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। तो इस समय की बंदिश दे 3 हाजरियां जो होर भरनियां ने दास ने, उस दे च बाकी विचारां आप जी दे सामने रखण दी निमाणी कोशिश करांगा। सारियां दा हार्दिक तौर ते धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।